ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 किसान मजदूर अपनी जान गवा चुके हैं। सेंटर उन्होंने 20-20 लाख रुपया मुआवजा देवे ते उन्हों का एक बच्चा फौज या सेंटर की किसी भी भाग दे विच नौकरी देवे। बंदे दे पुत बन के सारे कानून जे वापस ले है, रही खुंदी MSP ये भी वापस होनी चाहिए है। सत्कारयोग साध संगत जी, निम्रता सहित आपनू फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडा बीबियां दा, भरावां दा एक एक ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਰਾਮ ਰੀਮ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ कि तुसी अज जिथे गुरु ग्रंथ साहब दे अगे हाजिर होए हो, ये एक इतिहासिक दिन है तुहाडी ते मेरी जिंदगी दे विच। मेरे कोले स्टेज दे उत्ते दल खालसा दे लीडर सरदार हरपाल सिंह चीमा साहब ते खडूर साहब आए हैं। साडे नौजवान लीडर लखा सधाना जी वो भी विराजमान है। तुहाडा सारियां दा दिलों मैं धन्नवाद करदा। दुनिया दे विच सिख ने कदे भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी झली नहीं है। और मेरे को सरदार सुखराज सिंह वो भी नाल खड़े सीगे, जिन्हां दे बापू जी कृष्ण भगवान सिंह इत्थे इत्थे शहीद होए सी इन्हां दे बापू जी। सो इन्हां दा बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा। ये उदों तो लेके अज तक गुरु साहब की सेवा करते रहे हैं। साध संगत जी, साडे गुरु साहिबान ने गद्दी गुरु ग्रंथ साहब नूं दित्ती है। ये साडे जिउंदे जागदे गुरु साहब है ते साडे हुंदियां इन्हां दी बेअदबी नूं 6 साल हो जाण, फिर सिख तो झल्लिया नहीं जाता है। पर क्यों करके असी एक बगानी कौम दे नाम हैगी है। साडे कोले अज सरकार दी ताकत नहीं है, अपने कोले वोट दी ताकत है, पर आपां सही मैने दे नाल वोट नहीं पाउंदे। कदे बादलों नूं, कदे BJP नूं जिहड़े दोषी हैगे है, कदे आम पार्टी नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने सानू किरपान ये दिती है। पर अज आम आदमी पार्टी का
ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਭਗਵਤ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ BSF ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅੱਧ ਸੈਨਿਕ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦਾ 40,000
ਸਕੁਐਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਲਦਾਖ ਦਾ ਲਟਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਸ ਹੋਈਆਂ 3 ਫੌਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਓ ਤੇ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਉਹਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰੋ,
ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ BSF ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ कि 5 ਮੈਂਬਰੀ गुरु की फौज ਜਾਂ गुरु के सेवक ये स्थापित होने चाहिए है। सारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी ते बाहर के मुल्कों जिथे सिखां दी वसो है। अज सानू फिक्र है कि साडे नौजवान बाहर के मुल्कों नूं जा रहे हैं। गल ये है कि जो 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु वारियां ਦੇ ਉੱਤੇ दरबार साहब ਦੇ ਉੱਤੇ फौजी हमले होए सी। उस तो बाद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पुत ने सारे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ सिखां बीबियां बच्चों की जो कतलेआम की सी, वो डर अजे तक साडे हिरदे दे विच पाउंदा। इस करके साडे बच्चे बाहर के मुल्कों दे विच हिजरत कर रहे हैं, अपने आप नहीं जा रहे। यही चीज़ नूं मैं बाहर के मुल्कों नूं दसदा कि ये कोई भी माली हालत खराब करन दे लई जां होण दे लई अपना वतन छड्ड के तुहाडे मुल्कां दे विच वसन नहीं आए। सिखां दे उत्ते अजे तक जो हुकूमत ने 1984 उस तो बाद जो जुल्म कीते है, उसे करके साडे नौजवान, साडियां धीआं बाहर नूं हिजरत कर रही हैं। ये चीज़ सानू याद रखनी पऊगी कि जो अज समय अज 5 साल हो गए है, सरकार ने कोई सानू उत्तर नहीं दिता कि इन्हां मुलजमां नूं असीं गिरफ्तार करांगे। सगों सुखबीर सिंह दोषी बयान दे रहा है कि जे मेरे साले नूं फड़ लिया तो असीं जेल भरो करांगे। साध संगत जी, ये लोग नरम हो गए है, इन्हां तो जेल नहीं चलिया जाना। जिहड़े जेल दे विच अज गए है, वो इन्हां दी करतूत करके गए है। किसी ने रेता बेचता है, किसी ने भुखी बेचती है, किसी ने हेरोइन बेचती है। वो सारे अज जेलों दे विच बादल ते सुखबीर दे राज दे विच उस करके जेलों भरियां हुई हैं। सुखबीर सिंह ते बादल दलियो, तुहानूं मैं दसदा सो जेल की गल ना करो, तुसी अपनी चमड़ी बचाउण की कोशिश करो। तदे जे तुसी साडे लीडर हुंदे तां फिर सेंटर दियां पुलिसां, सेंटर की फौज तुहाडी रखिया ते ना लगदी। सारे मरे पे है जमीर तो, तदे इन्हां दे कोले गनमैन है, राइफलां है, मशीन गन है। काहदे लई? जे साध संगत जी तुसी इन्हां नूं वोट पाउंदे हो ते कहिंदे एक बारी फिर सानूं वोट पाओ,
फिर ये तुहाडे कोले साडे वर्गन आके खड़े क्यों नहीं हो सकते? एक गैर आदमी है, इन्होंने धन दौलत बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली है, होटल बना लिए है दिल्ली दे विच, गुड़गावां दे विच, सारा जगह दे विच। 4-5 दिन होया मैं चीफ मिनिस्टर नूं मिलण गया सी ते उन्हां नूं दस्सिया सी कि 26 सालों तो साडे सिंह जेलों दे विच हैगे आ ते की उन्हां नूं आपां ने कढाउणा नहीं। 26 साल उम्र कैद 20 साल की हुंदी है ते साडे सिंघां ने 20 साल 25 साल जेल दे विच लाते है। कि मेरा मतलब है कौम उन्हां योद्धियां दे पिछे कदे खड़ी नहीं होगी कि कदे ये रवैती अकालियां ने कदे माता पास किया कि साडे बच्चे 25 सालों तो जेलों दे विच बैठे है। हुण तुसीं देखो SGPC जिहड़ी साडी जमात है, जिहड़ी साडी पार्लीमेंट है, ये अंग्रेज़ां ने 1925 दे विच स्थापित कीती सी। जदों सिखां ने मोर्चा जित्तिया अपना सिंह सभा दा, उस वेले स्थापित हुई है। इहदे कानून के मुताबिक 5 साल तो बाद इहदे इलैक्शन होने चाहिए है, पर अज साध संगत जी 11 साल हो गए है, अजे तक इलैक्शन नहीं होए। ये बादल की बनी हुई कमेटी अजे भी चली जाती है। इस करके इस कमेटी ने 328 स्वरूप महाराज सच्चे पातशाह दे बेचते है या गवाते है। उहदी जिम्मेवारी कौन लऊगा? असी सरकार नूं शिकायत कीती है, पर सरकार कहती है कि SGPC के अंदर असी दखलअंदाजी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जो एक तो इन्हां दे इलैक्शन नहीं होए, पुराने बंदे इन्हां दे 11 सालों के उत्थे बैठ के गोलख नूं लुट्टी जाते हैं। तो मैं आप नूं समझाउणा चाहुंदा कि तुहाडा फर्ज है कि साडा जमहूरीयत हक इस इंडिया ने मार दिता है ते इस नूं आपां ने वापस लेना, वोटां पाउणी है। कल मैं SGPC दे मोतबेरां नूं लिखिया सीगा, जिहड़ा इन्हां दे चीफ सैकटरी है, कि कल बरगाड़ी विखे साडा इकट्ठ हो रहा है, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश होणगे ते उत्थे बरगाड़ी गुरुद्वारा साहब की गोलख होनी चाहिए है। क्यों करके हमेशा जो असी फतेहगढ़ साहब या होर किते इकट्ठ करते हैं, असी नाल दे गुरुद्वारा साहब की गोलख मंगाते हैं। आ देखो एडे बेईमान है, इन्होंने गोलख नहीं भेजी हैगी। ते आ पैसा हुण असी इकट्ठा करके इन्हां तो रसीद लवांगे कि इन्ना चढ़ावा चढ़िया। सो सत्कारयोग साध संगत जी, ये जिहड़ा माल गुरु दा खांदे रहे है, इन्हां दे पल्ले कल नूं कख नहीं पैना हैगा। इन्हां दे कीड़े पै जाने है, इन्हां नूं कैंसर हो जाना है। क्यों करके जिहड़ा भी गोलख दा पैसा खांदा है, उहदा कुछ टब्बर दे विचों कुछ नहीं रहिंदा। जिन्ने पुलिस अफसरां ने जुल्म कीते है, उन्हां दे बच्चे कोई तो पागल हो गया, कोई लूला निकले है, कोई मर चुके है। अगे वो पुलिस अफसरां दी पोस्ट नहीं चल रही। सो जे साडी हुकूमत नहीं है, पर तां भी रब साडे उत्ते अख रख रहा है, ते सानू इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है।
ये ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ हैं साडा पिंड माना वाला सी पर मेरे दादा जी ने माना वाले तो अगे अपनी जमीन दे विच नवा पिंड वसाया किला हरनाम सिंह जदों तुसी जाओगे पाकिस्तान दे विच उत्थे जाके जरूर मिल के आयो। मेरे दादा जी दे कोले निहंगां दा जथा आया वो कहंदा सरदारा विसाखी तेथों असी मामला लेना ते दादा जी कहते जरूर ले लियो। ते फिर उन्होंने अपने मुंशी नूं थैली देती चांदी दे रुपइयां ते वो पिंड दे थड़े ते खड़ गया। उधरों सिंह आए घोड़े के उत्ते सवार होए ते उन्होंने की कीता वो थैली कबूल नहीं की। घोड़े की दौड़ दे विच खो के ले गए। फिर कहते विसाखी ते 5 मामले हुंदे आ सरदारा 4 होर दे। फिर 4 थैलियां होर दित्तियां मेरे दादा जी ने। फिर एक निहंग आया दड़ा दड़ करदा घोड़े ते खो के ले गया। मैं अपनी गल नहीं करता साथ संगत जी कोई किसी को राज न दे है जो ले हैं निज बल से ले हैं। जे तुसी जिवें पंथ की मर्यादा ऐतकी वोटां कम आ गईयां जदों बटन नपदे हो तो फिर तुहाडा फर्ज है कि सारिया मशीनां नूं खोलियो ते दोबारा तो बटन टप्पी जाओ। जो किसी को राज ना दे है ये तो लेना पैंदा है जी। हुण किसानां दा मोर्चा अंत दे विच सरकार नूं झुकना पिया पर उन्होंने जिवें साडे हिंदू भरा दी आदत है दुध दे विच मेंगना पा के दे रहा है। कहंदा मोदी जिहड़ा ऑर्डर कल पार्लीमेंट दे विच सुनाउणा है कि किसान तां 2.5 मुट्ठी दे ने असीं तां दे रही है इन्हां नूं रहता क्यों करके इन्हां नूं साल हो गया। पर असीं ये स्टेज तो मंग करते हैं जिहड़े इस साल दे विच 700 किसान मजदूर अपनी जान गवा चुके हैं। सेंटर उन्होंने 20-20 लाख रुपया मुआवजा देवे ते उन्हों का एक बच्चा फौज या सेंटर की किसी भी भाग दे विच नौकरी देवे। ये जिहड़ा मेंगना च दुध पा के दिंदे है अज सानू विश्वास नहीं है कि जिहड़ी चीज़ असी MSP मंगते हैं वो सानू कल पार्लीमेंट दे विच देणगे। सो लखा सधाना जी ने जिहड़ा कहा कि MSP जे ना मिलिया किसानां ने मोर्चा नहीं छड्डिया। मैं सेंटर नूं बेनती करदा कि देखो सिखां दे नाल पंगे ना लो। तुसीं समझदे हो जिवें अज अखबार दे विच RS दे मुखबरी मोहन भगवत ने कहा कि जिथे जिथे हिंदू कमजोर हैं उत्थे ये इलाकियां ने
इंडिया दे नाल नहीं रहना। वाकई ही गल ठीक है, अपने भगवत की गल मान लो, नहीं तो असी तुहाडे नाल नहीं रह सकते। जे तुसी साडे उत्ते ये जुल्म करते रहोगे, बंदे दे पुत बन के सारे कानून जे वापस लए है, रहिंदी खुंदी MSP ये भी वापस होनी चाहिए है। सो साध संगत जी, साडी पार्टी तुहाडों दिलों धन्नवाद करती है। सरदार जसकरण सिंह दा खास दा जिन्हें अज का सारा इंतजाम किया, सारे जथेदारां दा, जनरल सकत्तरां दा, जथेदार जिलियां दे सारे पार्टी के जथेदार जिहड़े आए है, ते खास करके तुसी आए हो। तुहानूं मैं ड्यूटी देती है कि हुण जे सरकार ने छेती फैसला ना किया तो बड़ा मोर्चा इत्थों भयानक लाना पऊगा। ते फिर जे तुसी पिंडां दे विच 5-5 मैंबरी गुरु की फौज बना दोगे तो फिर उस मोर्चे दे विच हरेक पिंड तो सिंह आ जाया करनगे। नहीं तो साध संगत जी, मेरे हत्थ दे विच कुछ नहीं गया, मेरे हत्थ दे विच सिखां दी संगत है। मैं तो गुरु महाराज साहब विराजमान है, नीचे तुसी विराजमान हो। तुहानूं संगत नूं बेनती कर सकते कि मोर्चा लगूगा तो तुसी 5-5 सिंह अपनियां कमेटियां बना के गुरु की फौज दियां ते तुसी तैयार बतैयार रहो। बहुत बहुत जिन्हां ने गिरफ्तारियां हुण तक दित्तियां, अज 148 दिन हो गए है, किसी ने दोबारा गिरफ्तारी नहीं दी। सारे सिंह बड़े बड़े सियाणे हैं ते गुरु की अजमत के लिए अपनियां गिरफ्तारियां दे के गए है, जिहदा पार्टी ते पंथ सदा याद रखोगी। ते इलैक्शन SGPC दे कराने तुहाडे हत्थ दे विच है। जिहड़े SGPC दे मैंबर है, जिहड़े बादल दलीए हैं, इन्हां दा हुण तुहानूं झग्गा खिंचना पऊगा। झग्गा खिंचना पऊ इन्हां दा। फिर तुहानूं सारा कुछ समझा के खुश करके तो उथों आग्ञा लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।